gather here to witness the formal conferring of responsibility and authority upon our newly appointed student leader. This ceremony marks a significant milestone in academic journey of us. The leaders being invested today have been chosen not just for their academic achievements but also for their exemplary character, dedication and commitments to serve their school community. These students will have the opportunity to inspire, motivate and guide their peer students towards success. मैं आनंद जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे नवनिर्वाचित छात्र समूह को उनकी जिम्मेदारियों के साथ औपचारिक रूप से नियुक्त कर सकें। जैसा कि कहा गया है, यदि आपके कार्य दूसरे को अधिक सीखने, अधिक करने और अधिक बनने के लिए प्रेरित करें तो आप एक नेता हैं। अभी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक महत्वपूर्ण और पवित्र प्रक्रिया से करेंगे, दीप प्रज्वलन। जैसा कि प्राचीन भारत की संस्कृति में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। अब मैं हमारे परमाचार्य स्वामी जी, प्राचार्य महोदय डॉक्टर साथी जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर आएं और इस अवसर को और भी प्रकाशमान बनाएं। Now I request all the students to kindly stand on your faces. School, attention! Stand at ease. Attention!
अभिराज कुमार मिश्रा कक्षा 7वीं व आयुष्मान कुमार ठाकुर कक्षा 7वीं व अपना जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कदम से कदम मिलाते हुए एक प्रदर्शन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका प्रोत्साहन केवल कपड़े की टुकड़े नहीं बल्कि ये विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। अब मैं मिसेस निधि कुमारी नाम और मिसेस वैशाली नाम को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो हमारे तेजस हाउस के प्रिफेक्ट को Soumya, class 8A, Tamanna from class 8A, Samriddhi, class 8A, and from boys' side, we have Naitumin, class 8B, Yash Kumar, class 8C, Krishna Dixit, class 8B, and Sumiran Kumar, class 7C. These students should be welcomed with lots of students are not full of dignity and power. They show their duties and responsibilities, which now they will output for the school. It's a responsibility. You have to be the change you want to see in this world. I would like to call Mrs. Ruchi ma'am and Mrs. Geeta ma'am to come on the stage and give them the token of their duties and responsibilities. हम देख सकते हैं तेजस हाउस के पुरुष कप्तान आदर्श कुमार कक्षा 9वीं क और महिला कप्तान अर्पिता सिंह कक्षा 8वीं क वायु के उपकप्तान निशांत रंजन कक्षा 9वीं क महिला कप्तान प्रिंसी कुमारी कक्षा 9वीं क अक्षय कुमार 9वीं क और प्रीति के उपकप्तान प्रज्ञा रॉय कक्षा 9वीं क शानदार प्रदर्शन करते हुए जोरदार तालियों के साथ इनका Our captains of all the house, we have Shaurya Kumar, class 9B, the captain of our house, Shivam Kumar, class 9B, the captain of Abhyuday Kumar, class 9C. From girls' sides, we have Tanvi Meera, class from our house, 9A, and captain of Tejas house, Pradipna Kumari, class 9A, and for mine, we have Mark class 9A, and for Vipin, we have Pratyusha Ram, class 9A. These students are coming with full of enthusiasm and are ready to make a responsibility of this institution. खेल हमें जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और परिश्रम करने को सिखाता है। अब मैं हमारी महिला स्पोर्ट्स कप्तान शिवांगी का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने हर समय अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्कूल का नाम रोशन किया है और आगे भी करेंगी। शिवांगी अपनी अटूट ऊर्जा और खेल के प्रति जुनून के लिए जानी जाती है। कृपया उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। For the education purpose also,
Student Council of Acharyakulam do solemnly pledge in the presence of God and this assembly to abide by the rules and regulations that govern our institution, to be honest and true to the core values that it stands for. We hereby affirm that we will always honor the faith and trust repose in us and work selflessly and tirelessly for the prestige and glory of our school. Jai Hind. प्रचारकमहोदयाः स्ववचोभिः अस्माकम् उत्साहवर्धनं करिष्यन्ति। In the divine presence of Param Pujya Swamiji Maharaj, Shraddha Acharya Ji, Honorable Swamiji, Sadhji, coordinators and charges, my dear teachers and loving students. It is with immense pride and a deep sense of responsibility I, on this auspicious occasion, that is investor ceremony, congratulate each and everyone present here. This ceremony holds a special place in our hearts as it signifies the official recognition and empowerment of our students and leaders. To our newly appointed leaders, a very big congratulations. An example and it is a commitment. Now you are coming in new role, and that role is about service. You have to prove yourself by coming forward. You are the first to forward. You have to take first step. You have to lend your hand. You have to inspire everyone to follow you. So this responsibility is on your shoulders. Our school Acharyakulam, it is a unique institution in which we are talking about spirituality, we are practicing Yaksha Yoga, and we talk about moral values. You have to enhance these things in everyone. You have to think about yourself, how much you are in this. You have to be more spiritual, you have to be more honest, you have to be more with integrity working in our school. Then you will ask for your juniors or your friends to do the work. We always say we have to work for everyone, not only for us. We have to be leader in school, not only followers. Our Param Pujya Swamiji is always saying to us, we are producing only leaders, not followers. For that, always we talk about three things: high thinking, strong determination, and work hard. It's talking about 17 to 18 hours work that you have to follow. I want to thank my teachers also who have mentored our students who are working day and night for them. Thanks for their endless efforts. I just want to say one quote here. That quote is, if your actions inspire anyone, if you are going to inspire by your work, if you are going to inspire by your steps, it means you are a leader. So you have to be leader who are going to inspire everyone. For that, you have to honest, you have to loyal, you have to be disciplined. Once again, congratulations to everyone. Thank you.
The world is changed by your example, not by your opinion. Oh, warm greetings to one and all present. I, Anmola, is honored and privileged to be head boy of our school. First of all, I would like to thank Parampuja Swamiji, respected principal ma'am, and all the teachers who have found faith in me and made me head boy of this esteemed institution. Friends, we, student council, stand here before you all, not to lead you only, but to work in coordination with each one of you and to achieve the best for our school. My friends, I promise you that I will work with all my zeal, devotion and dedication. And to the school authority, I promise that me and my team will work honestly and uphold the values and standards of Acharya Kulam, working tirelessly to make my school feel proud. Thank you. What? Features of eloquent speech. अब संक्षिप्त और हंड वाक्य पटुता के भी लक्षण होते हैं। अधुना विद्यालयस्य मुख्य बालिकां सुहानां अहं किञ्चित् वक्तुमाकारयामि। सर्वे तालिकादानेन तस्याः स्वागतं करोतु। Oh, I would like to ask first whom we can call a leader. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. A very healthy good morning to respected Swamiji, Principal Ma'am, Sadhiji, teachers, and all my students. I, Suhana, felt sort of forced to express my emotions. I would like to thank respected Swamiji and Principal Ma'am, who has shown immense faith on me by selecting me as the head of our prestigious institution, Acharya Kulam. From now onwards, I will seek to take all the responsibilities that come with this title of head. Discipline is all about following rules and doing what is right, even when no one is watching. In school, discipline means listening to our teachers, volunteers, and being respectful to everyone. And yes, I cooperate to take our school to the greater height of success. Thank you very much. बड़ों का आशीर्वाद काफी महत्वपूर्ण एवं अमूल्य है। इसलिए मैं परमपूज्य स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आएं और हमारे नए प्रतिनिधियों को स्वागत करें और उनका मार्गदर्शन एक बार लंबा काम तो हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपने यह हमें जीवन दिया है और हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी मनुष्य जीवन में होकर पवित्र भारत भूमि में हैं और भारत के अंदर भी ऋषि संस्कृति के संवाद
परम पूज्य योग स्वामी जी महाराज श्री आचार्य जी और उनके ही निर्देशन में चलने वाला यह विद्यालय आचार्य उनके हम विद्यार्थी हैं। तो हमें ऐसा सदैव गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे पिछले जन्मों में कोई अच्छे कर्म हैं जिनका हमें प्रतिफल मिला हुआ है और परम पिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हमें यह जिम्मेदारी मिली है कि हम इस ऋषि संस्कृति को आगे बढ़ा सकें और इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो अत्यंत आवश्यक कार्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो शिक्षा है, जो मर्यादाएं हैं, उनका हम पालन करें, ऐसा वातावरण हमें प्रदान किया है। तो आज के इस पवित्र अवसर पर जब कि वर्ष 2024 और 25 के आपके नए नवनियुक्त अनुशासक जिनको हम हेडवाइज हेडगर्ल और अलग अलग जिम्मेदारी के साथ जिनको कैप्टन, वाइस कैप्टन, हाउस कैप्टन अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उनको जिम्मेदारी देने का समय है। हमें अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर कोई ना कोई जिम्मेदारी सदैव निर्वहन करनी ही होती है, चाहे वह एक अच्छे बालक के रूप में, अच्छे विद्यार्थी के रूप में, अच्छे अध्यापक के रूप में, या फिर आगे चलकर अच्छे माता पिता के रूप में, परिवारजन के रूप में। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस देश के नागरिक हैं और परमात्मा की संतान हैं। तो हमारे सभी अनुशासन, हमारी मर्यादाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कभी भी हमारे देश का, हमारे विद्यालय का, हमारे परिवार का कोई भी अनुशासन भंग ना हो। हमारे मनुष्य जीवन की जो मर्यादाएं हैं, हमारे विद्यालय की जो मर्यादाएं हैं, हमारे देश की जो नियम कानून मर्यादाएं हैं, हमें उनका कभी उल्लंघन ना करें। और उसकी शुरुआत होती है विद्यार्थी जीवन। जैसा हमारा विद्यार्थी जीवन होता है वैसा ही हमारा आगे का संपूर्ण जीवन होता है। यह एक आधार होता है विद्यालय की, जिसमें हम सभी परिस्थितियों को सहन करते हुए, सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखते हुए अपने जीवन का बड़े अच्छे ढंग से निर्माण कर सकते हैं। आपके सामने जो अभी विद्यार्थी खड़े हैं, इनको विशेष जिम्मेदारी इसलिए दी हुई है क्योंकि अभी तक के जीवन में इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में संपूर्ण अनुशासन, शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यापकों का सम्मान और भी स्कूल की मर्यादाएं हैं, उनका पालन किया हुआ। क्लास 10 के विद्यार्थी को भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी है और हमने तय किया है कि हर साल केवल क्लास 9 के बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना पूरा ध्यान एकाग्र होकर पढ़ाई में लगा सकते हैं। हमें जीवन में जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसके प्रति हमें संपूर्ण निष्ठा के साथ, पवित्रता के साथ और ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जब हम देखते हैं कि आज देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो राजनेता के रूप में हैं या कोई अध्यात्म गुरु के रूप में है, राष्ट्र के जो शीर्ष व्यक्ति हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं या खेल के जगत में है, अर्थ जगत में है, जहाँ भी हम देखेंगे तो उनके सभी के जीवन में एक सामान्य बात देखने को मिलेगी कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पूरे अनुशासन के साथ जिया है। और यह परमात्मा का विधान है कि जब हम अपना जीवन पूरे अनुशासन, पूरी मर्यादा और ईमानदारी के साथ जीते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कहीं भी कोई निराशा का भाव नहीं आने देते। यदि हमारे जीवन में कहीं कोई कमी है, कहीं कोई निराशा है, तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, ना कि हमारी व्यवस्था, ना हमारे अध्यापक, ना हमारे माता पिता।
देखना तो हमें ही पड़ेगा। और उसके लिए बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा विद्यार्थी वो है जिसको एक बार बोल दिया और जीवन में कभी भी उसको दोबारा उस बात के लिए बोलना ना पड़े। अभी आपको बोला सीधे बैठो, फिर आप ग्राउंड हो गए, ये भी तो शास्त्र नहीं है ना। अभी आपकी बातें अवस्था है, कम से कम 1 से 2 घंटे तो आप लोग सीधे बैठ सकते हैं। जिस आसन में बैठ गए तो मिनिमम 1 घंटा वहाँ से चलना फिरना नहीं है। इससे क्या होगा? इससे आपका आसन करने का अभ्यास बनेगा और मन की एकाग्रता बढ़ेगी। तो जो आज आपके सामने विद्यार्थी खड़े हैं जिनको जिम्मेदारी दी है, आने वाले समय में आप में से भी कुछ बच्चे यहाँ पर आएंगे और उनको भी जिम्मेदारी संभालनी होगी। इसलिए आप सभी इनके द्वारा बताए गए सारे निर्देशों का पालन करेंगे, क्योंकि ये प्रतिनिधि हैं विद्यालय के, हमारे आपके अध्यापकों के। इनको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, इसका अर्थ यह है कि इनको हमारा प्रतिरूप भी आपको मानना है। ऐसा नहीं बोलना कि हेड बॉय या हेड गर्ल आपकी बात क्यों मानना। आपको ये मानना है कि ये स्कूल के प्रतिनिधि हैं, हमारे अध्यापकों के प्रतिनिधि हैं। अपनी मर्जी से ये कुछ भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं अध्यापकों के ऊपर। उनके पास समय का अभाव होता है। कई बार ऐसा बोल देते हैं कि आपके हाउस कैप्टन को या क्लास कैप्टन को, ठीक है आप थोड़ी देर क्लास संभालिए, हम अभी आते हैं। उस समय आपको उसके अंदर अपने अध्यापक का ही दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास कैप्टन है जिसकी बात को क्यों माने, ये तो हमारे बीच में खड़ा हुआ है। जब वो बेंच में हमारे साथ बैठा हुआ है तो आपका सहपाठी है, लेकिन जब वो बोर्ड के पास खड़ा हुआ या फिर ये कहीं नहीं अनुशासन के लिए खड़े होंगे तो ये आपके अध्यापकगण हैं, ये आपके जो है अधिकारीगण हैं। उस समय उनका पूरा सम्मान करना है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वह विद्यालय की मर्यादा का उल्लंघन माना जाएगा और मर्यादा उल्लंघन करने का जो दंड है वो आपको मिलेगा। इसलिए हमें परस्पर, और आप जो प्रतिनिधि हैं, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि आपके द्वारा कोई भी कभी भी कोई अमर्यादित अनुशासित कोई भी कर्म ना हो। किसी भी बच्चे को कभी भी आपको जोर से डांटना नहीं है, उसके प्रति क्रोध का भाव, द्वेष का भाव ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। आप लोग प्रतिनिधि हैं इसी सत्ता के, और आप लोगों को जब भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें आपको पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना है। और आपके व्यवहार से आपको जताना है कि आप लोग आचार्य गृह के प्रतिनिधि हैं। आपको जहाँ भी कहीं बाहर भेजे जाए, कभी विद्यालय से बाहर भेजे जाएंगे, कभी कॉम्पिटिशन के लिए कहीं भी, तब भी आपको अपने विद्यालय का पूरा अनुशासन और मर्यादा का ध्यान रखते हुए सदैव विद्यालय का नाम रोशन करना है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम रोशन करना है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। आप सभी को खूब आशीर्वाद, सभी को धन्यवाद। Now look, if chance